whole chapter in a very nice way. And beta, we are, है ना? Last part that when we measure length, we should follow 3 precautions. है ना? If you do not follow these 3 precautions, the length which we measure, it may be wrong. So how can we get correct measurement? What precautions we have to take while measuring length? है ना? Okay. So may I request Himanshu to chant Omkaram to begin the class. Himanshu, over to you. Everyone, close your eyes and chant Omkaram 3 times. Om. 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 Sai Ram. Sairam, sir. Sai Ram, beta. Sai Ram. Sairam, everyone. Okay, beta. है ना? So right now 15 of you are present. Attendance is not very much impressive, right? By 11:05 all of you should join. है ना बेटा? शायद बाद में ज्वाइन करेंगे बच्चे. Okay बेटा. So let me print my screen. हिमांशु देखना बेटा. है ना? I have shared my screen. Dhananjay, Sairam. Yes, sir. So your screen is visible. Okay, beta, good. So first of all, let me see my PPT. है ना? We have already learned all these things. है ना बेटा? Right? है ना? Once again, these all you can convert one unit into other. है ना? I think. है ना बेटा? So Yes, standard units. Now, in taking measurement of length, we need to take following precautions. These 3 precautions, and you should memorize it also. Exam में लिखना सकता है. Explain the 3 precautions that we should take while measuring correct length. तो पहला है, we should place the scale in contact with the object along its length. ठीक है बेटा? दूसरा है, if 0 mark is broken, then we can use any other full mark and then subtract the reading from the final reading. Okay? And third one, our eye must be exactly in front of the point. ठीक, point के ऊपर ना चाहिए, neither left side nor right side. है ना? अब इन 3 बातों को let us learn from टाटा क्लासेज ऑनलाइन ऑल्सो बेटा. ठीक है? तो ध्यान से देखना है इसको, वीडियो को. कोई अगर साउंड कम होगा तो बताना, बढ़ा दूंगा मैं. पहले बढ़ाता हूँ. करेक्ट वे टू मेजर लेंथ. ठीक है हिमांशु? Okay, sir. हाँ बेटा. सो ये वीडियो देखो पूरा, एंड इफ एनी क्वेश्चन नोट डाउन, है ना, एंड विल डिस्कस एट द एंड. ये देखते हैं. Vinod and his mother visit a tailor's shop. ठीक है, साउंड क्लियर है? यस सर. ओके बेटा, ये हमारा टाटा क्लासेज ऑनलाइन क्लास में उससे पढ़ा रहा हूँ मैं. Vinod's mother wants to get a shirt stitched for him. Which of the following devices should the tailor use to take Vinod's measurements? बोलो बेटा. Select the correct option हिमांशु. and click submit. Yes, sir. आवाज अच्छी आ रही है. हाँ बोलो. मेजरिंग टेप. मेजरिंग टेप है ना? टेलर के पास गया है विनोद शर्ट सिलवाने के लिए, तो टेलर क्या यूज करेगा? मेजरिंग टेप यूज करेगा, है ना? That's right. The tailor should use a measuring tape to take Vinod's measurements. Selecting a correct device for measurement is essential for taking correct measurements. For instance, if the tailor uses meter rod or meter scale for taking Vinod's measurements, he will not be able to measure Vinod's waist or chest correctly. Let's learn about some other guidelines that we need to keep in mind for measuring length correctly. Any questions so far? नो सर. Okay beta, so let us go ahead. No, sir. टेलर विनोद का मेजरमेंट
मीटर स्केल से लेना चाहेगा तो ले पाएगा? नो सर। नो सर। ले पाएगा। हाँ, वो फ्लेक्सिबल नहीं है ना? ओके। After selecting the correct device for measurement, here are certain points that you need to keep in mind for measuring the length correctly. Click each button to learn more. ठीक है बेटा, when we are going to measure length, we should follow these 3 points very accurately, very minutely. ये 3 पॉइंट हमारे हैं जिन पर बहुत ही अच्छे से ध्यान देना होगा, नहीं तो हम सही मेजरमेंट नहीं ले पाएंगे बेटा। इसको हम बोलते हैं 3 प्रिकॉशंस। पहला प्रिकॉशन आता है हाउ टू प्लेस द स्केल प्रॉपर्ली। स्केल को हम प्रॉपर्ली कैसे रखें? वीडियो इस पर क्लिक करेंगे तो चालू हो जाएगा। हाँ भैया, चालू करते हैं ना। ये 3 पॉइंट ध्यान रखना है, इसको अच्छे से याद कर लो। मैंने देखा है पिछले कई सालों से बच्चे लिखना रहता है, कुछ भी नहीं लिखते, 2-2 लाइन लिख के भाग जाते हैं। हो गया। क्वेश्चन क्या आएगा? एक्सप्लेन और मेंशन द 3 प्रिकॉशंस दैट वी मस्ट टेक व्हाइल मेजरिंग करेक्ट लेंथ। याद हुआ? Who will repeat the question? What are the 3 precautions that we should follow while measuring correct length? ठीक है, पहला है प्लेसिंग द स्केल प्रॉपर्ली, स्केल को अच्छे से रखना है। दूसरा है यूजिंग स्केल विद ब्रोकन एंड्स, कई बार स्केल के एंड्स टूटे होते हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हम नहीं मेजरमेंट करेंगे, हमने पहले भी डिस्कस किया है। और थर्ड वन पोजिशनिंग ऑफ द आईज प्रॉपर्ली, आई की पोजिशनिंग क्या होनी चाहिए। So let us learn one by one all these 3. Position the scale along the length of the object, with the scale being in contact with the object wherever possible. Hold the scale steady in this position and note down the readings. Okay, who will tell me? First precaution, Himanshu or Arush? Placing the scale properly. Placing the scale properly. वो तो पॉइंट बता दिया आपने, एक्सप्लेन तो करो हाउ टू प्लेस द स्केल प्रॉपर्ली। सर may I? हाँ बोलो बेटा। यस। If scale end is broken, so we supposed to. नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, नोट डाउन, नोट डाउन करो। ये लिखो, फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है? फर्स्ट पॉइंट दिख रहा है तुम्हें? रीड द फर्स्ट पॉइंट। We should place the scale in contact with the object along its length. हाँ, नोट डाउन। एंड अभी मैं पूछूंगा क्लास खत्म होने के बाद, मतलब अभी मैं नाम लूंगा और पूछूंगा, आपको फिर बोलना पड़ेगा ये सब। तो पहला प्रिकॉशन है वी शुड प्लेस द स्केल इन कांटेक्ट विद द ऑब्जेक्ट अलोंग इट्स लेंथ, लेंथ में कांटेक्ट में रखेंगे, है ना? ओके, फर्स्ट पार्ट है ना, पोजीशन द स्केल अलोंग द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड प्रिकॉशन में चले, और कोई डाउट है इसमें जो बोलो। आप अपने बुक को देखिए, एनसीईआरटी बुक देखो बेटा, बुक है सबके पास? पहला प्रिकॉशन देखिए, है ना, ए बी दिख रहा है। मेथड ऑफ प्लेसिंग द स्केल अलोंग द लेंथ वी मेजर्ड, करेक्ट एंड इनकरेक्ट। ए वाला करेक्ट है, बी वाला इनकरेक्ट है। बताओगे बी वाला इनकरेक्ट क्यों है? सर हाँ, वो स्केल टेढ़ा रखा है। क्योंकि वो स्केल टेढ़ा है और तो सही मेजरमेंट नहीं आएगा। ये वाला करेक्ट पोजीशन। अगर आपको डायग्राम बनाना है तो बना सकते हो बेटा, कॉपी में बना लेना, ठीक है? ये डायग्राम कॉपी में बना लेना। अलोंग द लेंथ, पैरेलल टू द लेंथ रखना हमको है। वेरी गुड। सो लेट अस गो अहेड। सेकंड प्रिकॉशन, If the end of the scale is broken, then measuring from the 0 mark on the scale might lead to incorrect measurements. In that case, you may use any other full mark on the scale as a starting point. ध्यान रखना बेटा, क्या बता रहा है? फुल मार्क से स्टार्ट करना है। आप 0.9, 0.8, 0.5 से मत शुरू हो जाना, टूटा वहां शुरू हो जाते हैं।
नेक्स्ट जो भी फुल मार्क है, अच्छा 1 भी उठा हुआ है, तो अगला फुल मार्क क्या होगा? सर 2। 2। हाँ, ऐसा नहीं 1.9, 1.8, 1.5 शुरू करेंगे, ऐसा नहीं करना है। ऑलवेज बिगिन विद द फुल मार्क, फुल कंप्लीट मार्क शुरू करना है। ध्यान से देखिए, पूरा पढ़िए। And subtract the reading of this mark from the reading at other end. Got it? If the 0 mark is broken, we can start with any full mark and then subtract its reading from the reading at the end. लास्ट वाला रीडिंग से, जैसे इसने 1 से चालू किया और अगला रीडिंग 7 आया, तो 7 - 1 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर लेंथ हो जाएगा। आया समझ में? इसको कैसे लिखेंगे? सी सेकेंड प्रिकॉशन, नोट डाउन, मेमोराइज। एग्जाम्पल बताने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल अगर एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आएगा, लिख देंगे आरुष वॉज गिवन ए स्केल टू मेजर द लेंथ ऑफ अ स्विंग निडल, ठीक है। और क्या बोलते हैं उसको, जो स्वेटर बनाते हैं ना, एक लॉन्ग निडल होता है स्वेटर बनाने के लिए, देखा है आप लोगों ने कोई? स्वेटर बुनने के लिए घर में मिल जाएगा आप लोगों को, अगर मम्मा या दीदी आपकी स्वेटर बना रही होंगी तो मान लो उसका लेंथ मेजर करना है, और आरुष को एक स्केल दिया गया, but the 0 mark was broken, then what Arush will do? If 0 mark is broken, then we can use any other full mark of the scale, and then remember, subtract the reading of this mark from the reading at the other end. Example देखो दिया हुआ है, if the reading at one end is 1 centimeter and other end is 14.3 centimeter, then the length of the object will be 14.3 minus 1.0, so you will get 13.3 centimeter. So you can give example also. ठीक है बेटा? Any doubt? Precaution number 2. You may get broken 0 in the scale. Then do not be panic. Do not be disappointed. You can take measurement still. ऐसा नहीं स्केल तो टूटा हुआ है सर, इससे कैसे मेजरमेंट होगा? नाच न जाने आंगन टेढ़ा नहीं चलेगा। ठीक है बेटा? हेलो साईराम, बोलो बेटा। यस सर। क्लियर है? यस सर। सेकंड प्रिकॉशन आ गया बेटा? सेकंड प्रिकॉशन आल्सो क्लियर? Shall we move to third precaution? थर्ड वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो तो हम लोग आसानी से कर लेते हैं, थर्ड वन वाले में गलती करने से फिर भी गलत मेजरमेंट आएगा। आइए थर्ड वन। When measuring an object, it is important to position your eyes correctly. Your eyes must be positioned exactly in front of the point where the reading is to be taken. For example, you can observe in the image given here. The correct position of the eyes measures the length of an object as 7.5 centimeters, while the incorrect positions of the eyes lead to incorrect measurements. ठीक है बेटा? ये देखिए, if your position of eye, it should be just above the mark. ठीक मार्क के ऊपर आई होनी चाहिए, इधर लेफ्ट या राइट की तरफ झुका हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा? सो यू कैन नोट डाउन थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट दिख रहा है? थर्ड पॉइंट, आवर आई मस्ट बी एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ द पॉइंट वेयर द मेजरमेंट इज टू बी टेकन। बिल्कुल उसके ठीक ऊपर हमारे आंख पोजीशन होनी चाहिए। ऐसे नहीं करना है ना ऐसे करना है। आई बॉल को मूव नहीं करना, आई बॉल सीधा उसी पॉइंट पे होगा, उसी पॉइंट पे एग्जैक्टली अबव द पॉइंट। एनी डाउट? बोलो बेटा। बुक देखिए अपनी, बुक देखो बेटा। देखो फिगर नंबर 10.9 देखिए, ये लड़का मेजरमेंट ले रहा है, तो बोलो किसका करेक्ट है, ए वाले का, बी वाले का या सी वाले का? बी वाले का। बी वाले का। सीधी स्ट्रेट है ना, उस पर है बेटा, प्रॉपर पोजीशन आई है ना। सो तीनों पॉइंट याद हो गए आपको?
What are the three precautions that we should take? While measuring correct length. है ना? First one is we should place the scale in contact with the object along its length. Second one, if 0 mark is broken, we can start with any other full mark and subtract this reading from the final reading or from the reading at the other end. And third one, our eye must be exactly in front of the point where the measurement is to be taken. Okay? ठीक है बेटा? So these three precautions we have learnt. Now three precautions we have taken. ठीक है बेटा? Now how to correct way to measure length हो गया हमारा. अच्छा बेटा. Now tell me. एक स्केल आपको दे दें. यस सर. एक स्केल आपको दिया मैंने और उस स्केल वो जो स्केल है ना, आप आज घर में करके देखना. सबके घर में ऐसा चौड़ी वाली इलास्टिक पट्टी होगी. अभी जो ये हम लोग ये लगाते हैं ना बेटा, ये देखो ये वाला ऐसा पट्टी होगा घर में, ऐसा दिख रहा है. ये मेरे मास्क में जो पीछे रबर बैंड लगा है ना, तो ये फ्लैट है ना, रेक्टेंगुलर पट्टी मिलेगी रबर बैंड की. समझ में आ रहा है? दिख रहा है बेटा? एक मुझसे हिमांशु, यस सर. ऐसी इलास्टिक पट्टी ले लो और चौड़ी मिल जाए तो और अच्छी बेटा, मिलती है मार्केट में. ऐसी चौड़ी पट्टी मिलेगी मार्केट में. अब इसके ऊपर स्केल रख के कुछ मार्किंग बना लो, स्केल जैसा बना लो. इसको स्केल रख के इसमें मार्किंग कर लो. 0 मार्क कर लो, 1 मार्क कर लो, 2 मार्क कर लो, 3 मार्क कर लो, 4 मार्क कर लो. और हम इसको लेकर के, इस स्केल को लेकर के हम मेजरमेंट लेते हैं. तो डू यू थिंक यू विल फाइंड सम डिफिकल्टी? नो सर. डिफिकल्टी नहीं आएगी सर आएगी सर, क्योंकि सर पॉइंट मतलब चेंज हो जाएंगे सर शायद से. हाँ, वेरी गुड. अगर मैं मेजरमेंट लूंगा, जिसे खींच देंगे तो क्या होगा? लो, इलास्टिक स्ट्रेच हो जाएगी. सर इलास्टिक जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी सर. जो पॉइंट्स है वो और दूर लोकेट हो जाएंगे. हाँ, तो पहले मान लो मेजरमेंट था 5 सेंटीमीटर और स्ट्रेच करोगे तो क्या हो जाएगा वो? सर 10 सेंटीमीटर. 7 सर सेंटीमीटर. 7 सेंटीमीटर. बढ़ जाएगा या घट जाएगा? वो मार्क के आगे चला जाएगा, स्केल आगे चला जाएगा ना बेटा. यस सर. आपने स्केल पहले रखा था 5 पे, खींच दोगे तो क्या हो जाएगा? 3 पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा. नहीं, इलास्टिक है ना, आपने जहां तक मार्क था पहले उससे आगे खींच जाएगा, तो मेजरमेंट कम मिलेगा आपको, एक्चुअल से कम मिलेगा आपको, है ना. सो इलास्टिक वाले मेजरिंग टेप में प्रॉब्लम आ सकती है हमें, है ना. ओके, चलो ये भी समझ में आ गया आपको. इलास्टिक वाले में प्रॉब्लम आपको आएगी, है ना. अच्छा, कोई कर्व्ड लाइन है, देन हाउ कैन बी मेजर? सर मैं हाँ, यूजिंग अ थ्रेड एंड मीटर स्केल. स्केल. दोनों लिखना होगा, सिर्फ थ्रेड मत लिखना. थ्रेड से तो हम उस पर कंपेयर कर लेंगे और बाद में उसको मेजर कर लेंगे ऑन द मीटर स्केल. ठीक है? Okay, then we have learnt about motion, types of motion. So altogether we have discussed whole thing of this chapter. And now can you see this? दिख रहा है बेटा ये? Let us see some questions. Some questions. Which of the following can cause an error during measurement? Looking at the measuring point sideways, looking at the measuring point from directly above, aligning the start point of the object with the end of the ruler, aligning the start point of the object with the 0 mark on the ruler. Bolo. Looking at the measuring point sideways. Looking at the measuring point sideways.
ओनली ए, और कोई? ये भी तो हो सकता है। दोनों सी भी हो सकता सही वाला हो सकता है है। ना? हाँ, सबमिट करते हैं, या दोनों सही है ना? दोनों होगा आंसर इसमें, क्योंकि अगर हम एंड पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो अपनी मेजरमेंट लेंगे किधर जाके? है ना? स्केल का एंड पॉइंट से शुरू कैसे कर सकते हैं मेजरमेंट? स्केल के बिगिनिंग पॉइंट से शुरू करेंगे ना, और अगर तो जीरो सर वो टूट जाए आएगा तो? नहीं सर, है एंड ना? पॉइंट से बाद में तो कुछ होगा ही नहीं। हाँ, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट कन्वर्जन? आप खुद पढ़ के देखिए, बताइए मुझे, ऑप्शन बताना ए बी सी डी में से। ए, सर ए और डी। है ए ए करेक्ट? नो, बी करेक्ट बी 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 इज बी, करेक्ट। बी। बी। करेक्ट, सर बी, बी। only B is correct. Yes, you are right. What should you use to measure a curved line? सर अरो। A, है ना? A part. Any other? यस सर। सर ए। हाँ, yes. है ना? देखो लिखा भी है, द बेस्ट वे टू मेजर अ कर्व लाइन इज यूजिंग अ रोप और थ्रेड बोल सकते हो, एंड बेंडिंग इट अलोंग द लाइन एंड लेटर मेजरिंग द रोप लेंथ विथ अ सुटेबल डिवाइस. द डिवाइसेस लाइक मीटर स्केल, yard stick and ruler are not flexible, hence cannot be used to give accurate length. Very good. Some more questions. Ram wants to measure the length of his book. Which measuring object is most appropriate to do so? रूलर। सर रूलर। Ruler. रूलर सर, रूलर। है ना? और कोई? मीटर टेप। मीटर मीटर टेप। टेप। मीटर टेप। एक ही सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन एक ही सिलेक्ट हो रहा है। रूलर सर, रूलर। सर फिर रूलर होगा। वेरी गुड. Next question. Which unit of measurement is most suitable to measure the length of a half-used pencil? सेंटीमीटर। सर सेंटीमीटर। Centimeter. Very good. A tailor uses a dash to take measurements, while a cloth merchant uses a dash to measure a cloth. मीटर टेप। Meter tape. मीटर रोड। C. मीटर टेप एंड Meter tape will be used by the tailor, and meter rod will be used by the cloth merchant. Very good. While measuring the length of a book, what precautions should you take? बोलो. ए। ए। A. A. Very good. ठीक है. Precautions to be taken while measuring length. Keep the measuring सर device. वन मोर होगा सर, सी वाला। सर वन मोर होगा, सेवेंथ वाला रेड आ रहा है क्योंकि वो गलत बता रहा है सर, यहाँ पर तो सही बता। सर एक और आएगा। सर सी। सी होगा। हाँ, ये दोनों सही होगा. यस सर। अब वेरी गुड. सर अब सही है। तीसरा भी अगर है तो वो भी हो जाता. इसके बारे में था. तीसरा कौन है बताओ? कौन सा और छूट रहा है? जीरो मार्क ब्रोकन वाला है ना बेटा? कई बार स्केल यस सर, टूटा जीरो होता है. मार्क। ये जीरो मार्क इज ब्रोकन है. लास्ट क्वेश्चन. नहीं और है. The ends of a scale are broken. The length of a pencil was measured using the broken scale by taking the first full mark as the start point. The length was measured as 8.2 centimeter. ठीक है? Then it was measured using a new intact scale and the length was measured as 7.4 centimeter. What length was missing from the broken scale at the end from where the pencil was measured? सर 0.8 सेंटीमीटर। 0.8 सेंटीमीटर। करेक्ट है ना? Which of the following can best measure the girth of a tree? गर्थ मतलब पेड़ की मोटाई. तना होता है ना,
मथाने को ऐसे पकड़ने को जाके एम्ब्रेस करो तो ये जो गोला होता है थ्रेड ना, और मीटर थ्रेड सर थ्रेड और मीटर टेप सर क्लियर करना है, कैसे करेंगे? सर थ्रेड और मीटर टेप सर थ्रेड एंड मीटर टेप थ्रेड एंड मीटर टेप सर थ्रेड एंड मीटर टेप सर सीडी मीटर टेप अगर है तो थ्रेड लेने की जरूरत ही नहीं है, एक साथ हो ये जाएगा सर ना, मीटर टेप ही होगा सर मीटर टेप है ना, अकेले हो जाएगा, इससे काम हो जाएगा। थ्रेड लेंगे तो फिर मीटर स्केल भी लेना पड़ेगा, दोनों होगा, थ्रेड एंड मीटर स्केल दोनों होगा। अगर ये नहीं होता तो मीटर टेप, करेक्ट। Which of the following is a proper instrument for measuring length of a cloth? सर मीटर स्केल Meter scale. मीटर स्केल Very good. सर नैनोमीटर नैनोमीटर और छोटा बेटा है, मिली, मिली से भी छोटा, माइक्रो, माइक्रो से भी छोटा, नैनो, ठीक है। यस सर हमने दिखाया था, बताया था आपको, एक लिस्ट दिखाई थी ना आपको, एक लिस्ट दिखाई थी मेजरमेंट का। अच्छा इसमें नहीं है, बताया था ना कि मीटर से भी छोटा होता है, मिली से छोटा, माइक्रो उससे छोटा, नैनो उससे भी छोटा, फेम्टो उससे भी छोटा, अट्टो, और किलो से बड़ा कौन बताएगा? किलो से बड़ा मेगा, मेगा से बड़ा गीगा, उससे बड़ा टेरा, उससे बड़ा पेटा, उससे बड़ा हेक्सा, है ना? योटा अरे नहीं बेटा, किलो से बड़ा है मेगा, उससे बड़ा है गीगा। एक मिनट रुको, वेट 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 वेट, योटा बाइक लास्ट है हाँ एक मिनट बेटा। चार्ट है, ये देखो, इसको देखना, ठीक है, ये दिखा आपको, फर्स्ट पार्ट देखो, ये हमारा दिख रहा है बेटा, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर ये देखो किलो, ये किलो, किलो के ऊपर देखो क्या है, कौन पढ़ेगा? मेगा, फिर से गीगा इसके ऊपर टेरा पेटा पेटा एक्सा हेक्सा, और मिली, मिली से नीचे क्या है देखो? माइक्रो, माइक्रो नैनो पीको फेम्टो अट्टो ठीक है। ये जो अट्टो के बाद क्या होता है? अट्टो के बाद और हो सकता है कि यही बहुत छोटा हो जाएगा, 10⁻⁻18 है, 1/, ये कितना होगा अट्टो, कितना होगा मैं लिख के दिखाता हूँ, अट्टो कितना होगा, अट्टो होगा आपका या अट्टो जो होगा बेटा आपका 1/1 कितना छोटा हो जाएगा, 3 4 5 6 ऐसे ऐसे कितने जीरो, 18 जीरो, उतना मीटर को बोलते हैं 1 अट्टोमीटर, 10⁻⁻18 मीटर है 1 अट्टोमीटर, बहुत ही छोटा हो जाएगा। अब उससे छोटा अभी और मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, माइक्रो, नैनो, अभी हम लोग नैनो में हैं, नैनो तक, नैनो के नीचे पिको तक कुछ कुछ यूज होता है मेजरमेंट में, समझा? तो ध्यान से अगर देखोगे तो आप, नैनो कितने मीटर है? हाँ बेटा नैनो बता रहे हैं, नैनो कितना है, ध्यान से देखो, नैनो होगा 1/1 के बाद 90 10⁻⁻9 मीटर,
देखो नैनो कितना है, 0.000000001 मीटर इज 1 नैनोमीटर, है ना। कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर लो, आसानी हो जाएगी अपने लिए। या गुड, चलो बार बार खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिखा बेटा, है ना। हाँ, ये देखिए 1 नैनोमीटर, इतना 0 कितना छोटा हो गया देखो ना, अपना मिली ही कितना है, 0.001 मीटर है, 1/1000 सर मीटर। इतने वेट का क्या होता होगा? कितने वेट में, मिली में। आप क्या, गोल्ड गोल्ड को मेजर हम करते हैं बेटा मिलीग्राम में, ठीक है। तो सर फिर नैनो, पीको, फेमटो, एटो में? नैनो पिको में आजकल हमारा नैनो टेक्नोलॉजी है, मतलब जो डिवाइसेज हैं बहुत ही छोटे होते जाएंगे। नैनो में साइज में मान लो रोबोट आएगा छोटा सा, जो हमारे ब्लड में इंजेक्ट कर दिया जाएगा और वो मेरे ब्लड में घूमता रहेगा, और डॉक्टर को मुझे ऑपरेशन करना है तो उसको इंस्ट्रक्शन दे सकता है बाहर से, और वो हमारी बॉडी में घुस के ऑपरेशन कर देगा वो डिवाइस। तो डिवाइस अगर बड़ा होगा तो ब्लड में घूम पाएगा क्या, बताओ। नहीं घूम पाएगा नहीं सर। हो पाएगा। तो ऐसे में आगे अभी नैनो का जमाना अभी बेटा है, अभी नैनो टेक्नोलॉजी का काफी यूज होगा हमारे लाइफ में, अभी उतना यूज शुरू नहीं हुआ है, अभी शुरू होगा नैनो टेक्नोलॉजी का। और हमारे कंप्यूटर में मेमोरी, अभी देखो आपके पास पेन ड्राइव होगा तो कितना होगा, 1 GB, 6 GB, 16 GB होता है ना आपके पास। यस सर। हाँ, तभी गीगा है। लेकिन आपके पास कंप्यूटर होगा, डेस्कटॉप पर होगा 1 TB का स्टोरेज डिवाइस होगा, टेराबाइट में आने लगा कंप्यूटर में, है ना। तो टेरा तक तो काफी यूज हम कर रहे हैं, उससे बड़ा करें तो पेटा में, फिर एग्जाम में। आपने इलेक्ट्रिसिटी देखते हैं, कहता मेगावाट का प्लांट है, 10 मेगावाट, 1000 मेगावाट का प्लांट है, मेगा तक में अभी पड़े हुए हैं हम इधर, ठीक है। गुड, चैप्टर एंजॉय कर रहे हो आप लोग, इसका मतलब है ना। Yes, sir. यस सर। Very good, very good. So now let us see the questions at the chapter end. क्वेश्चन देखो बेटा, ये देखो इसका मेन पॉइंट्स पढ़ लेना। अच्छा, हु विल रीड दिस समरी, समरी सभी लोग पढ़ेंगे, और ध्यान से कोई डाउट है तो पूछना हमें बेटा, और उस कॉपी में भी लिख लेना इफ पॉसिबल। नोट सबने बना लिया होगा, ये 3 प्रिकॉशंस जो मैंने बताया अभी लिख लेना बेटा। सर बना लिया है। हाँ बेटा, पढ़ो, कौन पढ़ेगा। मैं पढ़ूं? सर मैं आए। हाँ पढ़ो। मैं आए। सर मैं अक्षर जैन। हाँ अक्षर पढ़ो, अक्षर को पढ़ने दो। हाँ, डिफरेंट Different modes of transport are used to go from one place to another. In ancient time, people used the length of a foot, width of a finger, हाँ distance of steps as units of measurement. This caused confusion and a need to develop a uniform system यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ measurement. मेजरमेंट रूल्स। Now we use international system of unit as a unit. This is accepted all over the world. एक मिनट Meter रुकना is बेटा, the unit रुकना of रुकना, length in SI unit. वेट वेट बेटा वेट। एस आई यूनिट का फुल फॉर्म क्या हुआ, इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। याद कर लेना, International system नेशनल of unit. सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। उल्टा, इधर आई को पहले बोलना, एस को बाद में बोलना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मीटर इज द एस आई यूनिट ऑफ लेंथ, है ना। नाउ मोशन इन स्ट्रेट Sir, लाइन इज कॉल्ड, motion in a straight line is called rectilinear motion. In circular motion, an object moves such that its distance from a fixed point remains the same. Motion अच्छा that बेटा, वो फिक्स repeats पॉइंट क्या कहलाएगा। after some period of time is सुनो सुनो भाई, rectilinear. सुनते तो नहीं तुम लोग। इन सर्कुलर मोशन द फिक्स पॉइंट विल बी कॉल्ड, जल्दी बोलो। Point remains the same. हाँ, तो फिक्स पॉइंट क्या कहलाएगा। ये मान लो Center. ये, अरे नहीं यार तुम लोग भूल जाते हो साहब, है ना। ये कोई सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है कोई ऑब्जेक्ट मान लो, तो कौन से फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा। तो सेंटर से।
हाँ, तो सेंटर है फिक्स पॉइंट, इससे सारे पॉइंट जितना घूम रहा है हमेशा सेंटर से बराबर दूरी पर होगा, ये गोल होना चाहिए बेटा, है ना। अभी मैंने ऐसे ड्रॉ किया ना हाथ से, इसलिए ऐसा हो गया। माउस से करना चौक तो है नहीं कि मैं कर सकता। ठीक है, गुड। हाँ जी, मोशन दैट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। ये सब हमारे टंग पे आ जाना चाहिए, है ना। जब भी मैं पूछूंगा डिफाइन पीरियोडिक मोशन, फटाफट बोलोगे। व्हेन an object repeats its motion after a fixed interval of time, it is called periodic motion, and you can give examples. तो चलिए क्वेश्चन आंसर देखो, सभी लोग पढ़ के देखो बेटा, क्वेश्चन पढ़ के देखिए सभी लोग। गिव 2 examples each of modes of transport used on land. बोलो करो। सर कार एंड ट्रेन। सर बस एंड कार। वेरी लैंड गुड। पे। वाटर। वाटर पे बोट एंड शिप। सर बोट एंड स्टीमर्स। वेरी गुड। एयर में क्वेश्चन एरोप्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। ट्रेन एंड हेलीकॉप्टर्स। देखो बेटा, लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखो, 9। Why could you not use an elastic measuring tape to measure distance? What would be some of the problems you would meet in telling someone about a distance you measured with an elastic tape? है ना। सर वही क्वेश्चन है। हाँ, ये मैं बता रहा था अभी। चलिए क्लास एज के पास पहुंचते हैं एंड लेट अस गो टू द, बहुत देर तो नहीं होगा ना, भूल जाता है इनका। चैप्टर एंड रिसोर्सेस, या हाँ, देखना बेटा क्वेश्चन नंबर 9 था ना। क्वेश्चन नंबर 9, हाँ, या क्वेश्चन नंबर 1 2 नेक्स्ट। टाइम देता है खुलने में, नेटवर्क आई थिंक स्लो। और क्वेश्चन पढ़ के देखो बेटा, क्वेश्चन सारे पढ़ के देखिए, किसी में डाउट है तो बोलो सभी लोग, ऑल ऑफ यू। हाँ ये खुला, एक पेज और चले, है ना, तब 9 पहुंच जाएंगे, 5 हुआ है। हाँ बेटा, क्वेश्चन 5 तक आया। द हाइट ऑफ अ पर्सन इज 1.65 मीटर, एक्सप्रेस इट इनटू सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर। कर लोगे आप लोग? प्रॉब्लम आएगी? हमने सिखाया था वो करने के लिए, है ना। कन्वर्जन सारे बताए थे मैंने बेटा, है ना। अभी डाउट हो तो बोलना, सारे क्वेश्चन पढ़ के देखो। सर एक क्वेश्चन है। हाँ सर आपने एक बार बताया था कि जो लिविंग थिंग्स होती है उनके कैरेक्टरिस्टिक में बताया था कि वो ग्रोथ भी करती हैं। हाँ तो सर मेरी मम्मी ने बताया कि जो ह्यूमन बॉडीज होती है वो एक टाइम तक ही ग्रो करती हैं, ऐसा हाँ। क्यों? ग्रोथ का मतलब देखिए, न्यू सेल्स आर ऑलवेज, हमारे बॉडी में न्यू सेल्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड एंड ओल्ड सेल्स आर डाइंग। ठीक है बेटा, तो ग्रोथ का सेंस यहाँ पर ये है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो चीजें होती है बेटा। ग्रो का मतलब है एक डेफिनेट लाइफ स्पैन तक हमारे अंदर नए सेल्स बनते रहते हैं, पुराने सेल्स मरते रहते हैं। ठीक है, अब रेड ब्लड सेल तुम्हारा कितने 120 डेज के बाद उनकी डेथ हो जाती है, फिर नए रेड ब्लड सेल्स बन जाते हैं, ये ग्रोथ नहीं हुआ? बोलो। कोई पेड़ पौधा है, हो रहा है ना, कोई पेड़ पौधा है उसमें से डेवलपमेंट होता है और हाँ वो बाकी में ग्रोथ होती है। हाँ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या था। मेजरिंग डिस्टेंस यूजिंग अ मेजरिंग टेप made up of rubber will not be accurate. The measuring tape made of rubber will get stretched while measuring distance.
so the measurement will not be correct and uniform. While telling the measurement to someone, we would have to tell whether the tape was stretched, and if yes, then by how much. So we will not be able to give the correct and same measurements every time. हर बार मेजरमेंट अलग अलग हो जाएगा, कभी ज्यादा खींच दिया, कभी कम खींचा, इस तरह से। ठीक है बेटा? ओके माय डियर, और क्वेश्चन डाउट इसमें किसी में है? ये कर लोगे ना? अच्छा, अरेंज द फॉलोइंग लेंथ्स इन देयर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड, ये वाला। इसका आंसर क्या होगा बताओ? एनीवन? सर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1, नहीं सर 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर, हाँ, 1 मीटर 1 किलोमीटर। इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। कितना बताओ? तो सबसे छोटा कौन इसमें होगा बताओ? सर 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 1 किलोमीटर। मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 मीटर 1 1 किलोमीटर। सेंटीमीटर। इससे बड़ा होगा 1 मीटर, एंड फाइनली सबसे बड़ा होगा 1 किलोमीटर। ये होगा ऑर्डर। आप ऐसा साइन लगा सकते हो बीच में, ये साइन बता रहा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बड़ा है ना, मुंह खड़ा हुआ इधर, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, है ना? ये साइन लगा सकते हो बीच में, नहीं तो कॉमा लगाना। 1 मिलीमीटर, then will be 1 centimeter, then will be 1 meter, and finally will be 1 kilometer। और कई बार मैंने देखा है, मैंने यहाँ पर चेंज डिक्रीजिंग कर दिया और बच्चे ने फिर भी यही आंसर लिखा। अगर मैं डिक्रीजिंग करूंगा यहाँ पर तो क्या आंसर आएगा? So 1 किलोमीटर 1 मीटर 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर। So you have to read the question very carefully। एक साल मैंने ऐसे कर दिया था, यहाँ डिक्रीजिंग कर दिया, बच्चे ने खटाक से आंसर लिख दिया। रट्टा नहीं मारना है बेटा, समझ के काम करना है ना? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो। And I think this is a very good class. Many of you use your intellect, use your intelligence, and then give the answer. Very nice बेटा। So do the questions, है ना? पूरा नोट्स बनाइए, एक्सरसाइज कीजिए पूरा, है ना? है ना बेटा? एक्सरसाइज करो पूरा। लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग, है ना? और पूरा नोट्स बना करके सारा डायग्राम बनाइए, कंप्लीट कर रखिए चैप्टर को। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे न्यू चैप्टर। कौन सा चैप्टर है बताओ? चैप्टर नंबर 11। एनीवन कैन टेल मी? बोलो बेटा। अक्षर, चैप्टर 11 क्या है? चैप्टर नंबर 11 बताओ ना यार, क्या है चैप्टर नंबर 11 तुम्हारा? चैप्टर नंबर 11 आई थिंक, सर मैंने अभी तक देखा नहीं है। इट इज लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस। बहुत नाइस चैप्टर है। इसमें हम आर्ट इंटीग्रेशन भी करेंगे, ठीक है? लाइट, शैडोज एंड रिफ्लेक्शंस, वेरी गुड। सो नाउ लेट अस कंक्लूड बाय चैंटिंग शांति पाठ, ठीक है बेटा? सो बी रेडी, पढ़ के चैप्टर आना। चलो हिमांशु, आर यू रेडी? Yes sir। हाँ बेटा। All of you join your hands, close your eyes and chant Shanti Path 3 times। शांति शांति शांति। Yes, Sai Ram। Okay, now you can leave the class, है ना? Yes बेटा, you can leave the class। Sai Ram sir, thank you sir। Okay बेटा, good। Sai Ram sir, bye sir। Bye बेटा, Thank you sir। bye बेटा, bye।